So, should we start, Rokesh ji? You are not audible. We can start off now. Okay. Can't hear you. Yeah. Manjula ji has joined. Yeah, welcome, Okay. Manjula ji. Thank you for joining. Okay, should we start? Yeah. Hello, friends. I welcome you on our new topic, that is NLP for happiness. Friends, I am Kavita Patodia and I am a psychological counselor and co-founder of Abhivyakti Let's Talk. Along with me, I also welcome Aditi Pasari, who is the co-founder of Abhivyakti and a psychological counselor. Hello, Aditi. Hello. We have today with us Lokesh Kumar Lakhotia. It gives me a great pleasure to introduce him to you all. Lokesh is a life coach and a motivational speaker, and he is a master NLP practitioner. He has touched more than 18,000 lives and has deliberation experience with esteemed institutions like Tata's and Border Security Force. He's also associated with Udemy and has professional expertise in family coaching, life coaching, and career coaching. So, welcome, Lokesh ji. Thank you, Kavita ji. Yeah, I just need to add on this. He happens to be our mentor, and we are very happy to have you on this session. Thank you. It was my pleasure actually to do that. So today, as I said, our topic is NLP for happiness. And NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. सुनने में बड़ा भारी भरकम लग रहा है ना कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि कोई पता नहीं क्या भारी भरकम चीज है, लेकिन ये कितने सिंपल है और इसको इतनी ही सिंपली हमको एक्सप्लेन करेंगे लोकेश जी. सो ओवर टू यू लोकेश जी. Thank you, Kavita ji. Thank you, Aditi ji. It's a really great pleasure that I'm getting a chance to interact with so many wonderful people over here. Before we start off, I have some quick questions so that we can make this session more productive. Number one, I don't wish to be into a training session जहाँ पे सिर्फ मैं बोलता रहूँ और आप सुनते रहें या फिर शायद वहाँ से गायब भी रहें. That's possible because earlier it was in physical sessions or live sessions, it was pretty easier to hold concentration of people. Whereas on online sessions, it's a bit challenging because you can unmute your pictures and then it might be difficult. So what I would recommend is I would request a promise that all of you will participate when I ask you a question. So what you need to do is you need to use your chat box and just need to answer whatever I ask you to answer basically. So can I get a commitment? So what you need to do is you need to just type I in the chat box so that I know that you are committed towards this thing. Okay, so I've started getting responses. Some people are sending it to me on my personal window. Thank you very much. There are many who are still expected to commit. Because to make session interesting, it's important that you keep on sharing your thought processes as well. Your agreement to the statements or the ideologies, that's very crucial. Now, thanks a lot for your reward because I've received lots of reward on my personal window as well. So thank you very much for that. And I am sure that you will keep up to your commitments. Now, the second thing I would like to ask you is, which language will you prefer me to deliver in? आप मुझे हिंदी में चाहते हैं कि मैं सेशन हिंदी में लूं या you would like me to speak in English or you will prefer कि मैं हिंदी और English mix करके करूं?
नहीं, हिंदी में बोलिए, हिंदी में। हिंदी में, ओके, हाँ, फेयर एनफ। सो चलिए मैं हिंदी में ही बात करूंगा जिससे कि सबको कंफर्टेबल रहे एंड सब कोई ज्यादा से ज्यादा उस चीज को समझ सके। यस आदिति जी, टेल मी। Yeah, just a minute. I want to welcome Manjula ji, who is Vicky's president and all president, and we are really happy to have her. And you could spare some time for this session. Thank you. Thank you so much, Manjula ji. Thank you. Thank you. Lokesh ji, good afternoon. गुड आफ्टरनून मंजुला I जी, had how are done you? one session with you also, and I thanks to remember. Kavita for that. Thank you. Thank you. Welcome, Thank you. Manjula ji. Thank you. Thank you, Kavita. Thank you so much for coming. Always there. Thank you. Supporting, yeah, supporting our dear soul sisters. Definitely. Together. Yeah. So let's continue. Okay. Okay. So let's move on. हमने बात की कि हम हिंदी में डिस्कशन करने वाले हैं। That's number one. मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अपने माइक्रोफोन्स को आप म्यूट कर दीजिए so that it will be easier and comfortable for everyone. और सब कोई आराम से पूरे सेशंस को सुन पाएंगे ठीक से। Now, second thing. Now, the thing which I would like to share over here is ये जो सेशन है इसमें टॉपिक का नाम रखा गया है NLP for happiness. But the problem is, do we really need happiness? Okay, let me ask you one question. Fine. Those who have been a part of my sessions और जिन्होंने ये बात सुनी है वो प्लीज आंसर ना दे, बाद बाकी लोग ये आंसर दे सकते हैं because a few of you have already done my session. That's why I would request you on that. So how many of you have ever been to or have ever purchased a movie ticket? आप में से कितने लोगों ने मूवी टिकट्स आज तक अपनी जिंदगी में खरीदी है? Type yes in the chat box if you have. You can just type Y, that will do. अगर कभी नहीं खरीदी तो N लिख दीजिएगा। Okay, thank you. Thank you, Neetu ji. Thank you, Madhu ji. Okay, so now my next question: how many of you have ever purchased clothes for yourself? Thank you, Nupur ji. So, how many of you have purchased clothes for yourself? Just type I if you have purchased. I'll keep on changing my words so that I keep engaged, keep you engaged in the session. Okay, thank you, everyone. Thank you, Kumuji. Thank you, Neetu ji. Thank you very much. Now, my third question: how many of you have ever purchased a mobile phone for yourself or for anybody else also? Just type yes in the chat box or Y in the chat box. Okay, wonderful. Let me tell you, आप लोग बहुत अच्छे से झूठ बोलना जानते हैं। आप में से सारे के सारे लोग जिन्होंने यस आंसर दिया है इनमें से तीनों क्वेश्चन का, आप सभी बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, आज तक आपने ना कभी मोबाइल फोन खरीदा है, ना टिकट्स खरीदी है और ना ही कभी कपड़े खरीदे हैं। आप सिर्फ एक चीज बाय करते हैं, दैट इज हैप्पीनेस। लेट मी आस्क यू और लेट मी प्रूव दिस पॉइंट। जस्ट इमेजिन कीजिए आप किसी स्टोर में गए क्लोथ्स खरीदने के लिए। इज इट सो आप कोई भी कपड़ा उठा करके ले आते हैं? नहीं। क्या होता है, आप सबसे पहले किसी कपड़े को देते हैं, आप देखते हैं उसका मटेरियल का फील कैसा एंड ऑल दोस स्टफ, एंड देन यू थिंक ओके मैं पहन के कैसी लगूंगी और या लगूंगा। देन व्हाट यू डू इज नाउअडेज यू गो टू अ ट्रायल रूम, यू ट्राई इट ऑन एंड देन मिरर में देख के आप देखते हो हाँ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। एंड देन दो चीजें आपके अंदर में आती है। पहली, दिस क्लोथ इज comfortable to me, so I'll feel comfortable. So that's one of the way how you achieve your happiness. And second, which is even more important, ये कपड़े पहन के जब मैं बाहर जाऊंगी ना, तब लोग सामने से बोलेंगे वाओ यू आर लुकिंग ऑसम। जैसे ही वो लोग ऐसा कुछ बोलेंगे ना, सर से लेके पैर तक आपके अंदर में करंट चलता है। बिलीव मी, वी आर बाइंग ओनली दैट करंट, और इस करंट का नाम है हैप्पीनेस। सो नेक्स्ट, अगर आपने बात करें मोबाइल फोन की, सो
आप में से कई लोग एप्पल का डिवाइस यूज कर रहे होंगे, कई लोग कोई दूसरे फोन वन प्लस यूज कर रहे होंगे. लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. एक 5 या 10,000 का फोन और एक 1 लाख का फोन, टू बी वेरी फ्रैंक एंड रियलिटी पे अगर बात करें, टेक फीचर्स का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर कॉल आने और जाने की बात है और व्हाट्सएप रिसीव और सेंड करने की बात है और कुछ एप्स यूज करने की बात है, तो 10-12 हजार वाला फोन भी एनफ होता है. लेकिन स्टिल वी प्रेफर टू बाय अ एप्पल फोन. व्हाई? और say OnePlus phone or any other such expensive phone. Why? The point, two reasons है. Again, मान लीजिए कुछ लोग होंगे जिनके लिए ये रीजन होगा टेक्निकली, या कुछ रीजन से वो फोन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. ज्यादातर लोगों के लिए ये है that gives you a feeling of achievement. That is again a reason for happiness. So the point over here is, आप अगेन मोबाइल फोन नहीं खरीदने जा रहे हैं, हैप्पीनेस खरीदने जा रहे हैं. थर्ड चीज अगर बात करें मूवी टिकट की, इज इट सो आप किसी भी मूवी में चले जाते हैं? नॉट एट ऑल. आप क्या करते हैं? रिव्यूज देखते हैं, रेटिंग्स देखते हैं, दोस्तों से पूछते हैं वेदर ये मूवी पसंद आई कि नहीं आई. सो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप किसी भी तमिल तेलुगु फिल्म में कैसे भी घुस जाते हैं. इन केस अगर आप तमिल तेलुगु नहीं जानते हैं तो never. So what will happen is you will get in only if you feel that you will enjoy in that movie. Or forget about this, क्या आप सेम मूवी की दिन में 4 शो होते हैं तो क्या चारों शो की टिकट खरीदते कभी भी? Never. The point over here is your objective is not movie, not mobile phone, not clothes. Your objective is happiness. The problem is हम humans ये कोर हमारा जो गोल है ना, इसको भूल जाते हैं, जिसके कारण से अनहैप्पीनेस वाला स्टेट पैदा होता है हमारी जिंदगी में. सो इम्पोर्टेंट है, गोल क्लियर होना चाहिए, मुझे खुश होना है. दैट्स माय कोर ऑब्जेक्टिव और एजेंडा. द पॉइंट इज द मोमेंट यू नो दिस गोल क्लियरली, देन यू विल नो कि चीजों को ट्वीक कैसे करना है सो दैट आई कैन अचीव हैप्पीनेस. नाउ टू अचीव हैप्पीनेस एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला जो है ना, जो मुझे अराउंड क्लास 5 के आसपास में मुझे सीखने मिला था, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. ऑल्दो एक्सपीरियंस हुआ था क्लास 5 में मेरी जिंदगी में, मुझे समझ में आया था करीब 10 साल पहले. दैट मीन्स आफ्टर आई ग्रेजुएटेड एंड हैड अ एक्सपीरियंस ऑफ अनदर 5 years. उसके बाद मुझे समझ में आया वो क्लास 5 में मेरे साथ क्या हुआ था. सो I am a slow learner, so I take long time to learn something. So that's the problem with me. So the point, what happened was na, when I was in class 5, उस समय I was selected for volleyball team. So what happened was, वॉलीबॉल के लिए जब मुझे सेलेक्ट किया गया था तो मेरे टीचर आए, मुझे कहा कि लोकेश यू आर सेलेक्टेड फॉर वॉलीबॉल टीम. आई सेड सर मुझे इंटरेस्ट नहीं है वॉलीबॉल में, प्लीज डोंट कीप माय नेम, मेरा नाम हटा दीजिए. नाउ व्हाट हैपेंड वाज, मेरे सर ने मुझे पुश किया, नहीं लोकेश यू हैव टू डू दिस एज आई हैव कमिटेड दैट यू विल जॉइन. नाउ द रीजन वाज, उनका मानना था कि मैं कर सकता हूं बिकॉज मेरी हाइट अच्छी थी, मेरा बॉडी का बिल्ड अच्छा था. So that's why he believed that I can do a better job in volleyball. The point over here is I was not at all interested into it. Not at all interested. सिर्फ उनके पुश के कारण से I joined it. दूसरी तरफ एक और सिनेरियो चल रहा था मेरे दोस्त का. His name is Priyank. He is now in UK. So वो थोड़ा बल्की था, शॉर्ट हाइट में था. उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था उसके अंदर, उस वॉलीबॉल टीम के अंदर में. एंड ही वाज लाइक डैम क्रेजी फॉर दैट, मुझे किसी भी तरह ज्वाइन करना है. वो सर के हाथ पैर जोड़ा एंड कैसे ही करके सर को मनाया. सर ने बोला तुझे सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ले रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली तेरा मतलब सिलेक्शन नहीं होगा फाइनल गेम के लिए. एंड वो बोला सर कोई बात नहीं, आप मुझे टीम में तो लो, पहले मुझे आप एक कहना बोलते हैं ना एक्स्ट्रा पर्सन के हिसाब से रखो. let me just give my best. Now just understand this thing. यहाँ दो लोग हैं, एक मैं जो कि completely sure है कि वो नहीं कर सकता, दूसरा मेरा दोस्त जो कि completely मतलब एकदम पूरा का पूरा डेडिकेटेड है कि वो करके रहेगा. Now what happened is मेरे पास में रिसोर्सेज हैं. रिसोर्सेज मतलब मेरी हाइट,
मेरा बॉडी बिल्ड। मेरे दोस्त के पास में वो दोनों ही नहीं है, हाइट कम है, बॉडी बिल्ड थोड़ा ज्यादा बल्कि है, दैट्स व्हाई उसके लिए प्रॉब्लम थी। सो रिसोर्सेज मेरे पास है, उसके पास नहीं है। नाउ 4 महीने की ट्रेनिंग थी, उस 4 महीने में क्या हुआ वो मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा। सिंस मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था किसी भी तरीके से इस गेम के लिए, इसीलिए मैं कभी भी उस गेम के बारे में सोचता नहीं था, कभी एक्शन नहीं लेता था, कोई काम नहीं करता था। एंड दैट्स व्हाई हुआ किया कि फील्ड के अंदर में जब भी बॉल मेरे पास आती थी ना, तो सिर्फ मैं कोशिश करता था थोड़ा सा टच करने का, otherwise I was never active on the ground and lastly I failed miserably। ठीक है, whereas ये जो मेरा दोस्त है, उस बंदे के केस में क्या हुआ कि वो बंदा एकदम कॉन्फिडेंट था कि मुझे करना ही है किसी भी तरीके से, इसलिए बॉल उसके पास ना भी जाए ना तो भी he was jumping, he was giving his best and throughout the day he was thinking about that, say वॉलीबॉल के बारे में ही वो सोच रहा है कंसिस्टेंटली। नाउ इस पूरी सिचुएशन के कारण से हुआ कुछ ऐसा, एट द एंड ऑफ द डे जब सिलेक्शन हुई 4 महीने बाद में, तब आई वॉज नॉट सेलेक्टेड एंड ही वॉज सेलेक्टेड। नाउ मेरे सर मेरे पास आए, मुझे उन्होंने बोला लोकेश यू आर नॉट सेलेक्टेड। मैंने हंस के उनको बोला सर मैंने तो बोला था मेरा नहीं होगा। एंड उन्होंने एक बहुत वियर्ड सा स्माइल दिया एंड मुझे बोला हाँ लोकेश तेरा नहीं हो पाएगा। एंड आई वाज सो हैप्पी ऑन दैट डे, यू नो व्हाई, बिकॉज मैंने अपने सर को रॉन्ग प्रूव किया। कैन आई रिक्वेस्ट मीरा जी टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। सो मुझे इस दिन इतना मजा आया कि मैंने अपने सर को रॉन्ग प्रूव कर दिया। लेकिन अराउंड 10-12 इयर्स बैक जब मुझे ये चीज समझ में आई थी ना, तब मुझे पता चला कि दैट डे ही वाज व्हाई ही वाज स्माइलिंग इन दैट वियर्ड फैशन। वो अजीब तरह से क्यों हंस रहे थे, बिकॉज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी एक चीज नहीं थी जिसके कारण से मैं नहीं सक्सेसफुल हो पाया। वेयर एज मेरे फ्रेंड के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जिसके कारण वो सक्सेसफुल हो गया। अब ये क्या चीज थी इसके बारे में अपने बात करते हैं। हम सब इंसान रिजल्ट्स के ऊपर फोकस रखते हैं, हम सबको रिजल्ट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप मदर हैं तो एज अ मदर या एज अ हाउसवाइफ आप अपनी पूरी फैमिली को मैनेज करने का एक गोल रखती हैं, जो रिजल्ट आपको चाहिए होता है। आपके बच्चों के रिजल्ट के लिए XYZ हर चीज में आप सोच के देखिए, हमें एंड रिजल्ट चाहिए होता है। पॉइंट इज ये रिजल्ट जेन्युइनली बताऊं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोच के देखिए ये रिजल्ट किस चीज से आता है। रिजल्ट कम्स आउट ऑफ योर एक्शन। अगर आप एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट आएगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा एट ऑल। अब आप एक्शन की बात करते हैं, दैट मींस रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्शन। लेकिन एक्शन क्या सब कोई ले पाते हैं? नहीं, बहुत कम लोग ले पाते हैं एक्शन। क्वेश्चन कम्स अप, कौन एक्शन ले पाता है, कौन नहीं ले पाता है? जिसके पास पोटेंशियल होता है वो इंसान एक्शन ले पाता है, और जिसके पास पोटेंशियल नहीं होता है वो एक्शन नहीं ले पाता। नाउ पॉइंट इज ये पोटेंशियल कौन से मार्केट प्लेस में मिलता है? इज इट अवेलेबल ऑन Amazon और Flipkart somewhere? No, it's not available. It comes out of your belief। यानी जब आप बिलीफ ये रखते हो या हाँ मुझसे हो जाएगा, तब एग्जैक्टली आपका माइंड दिन रात इवन सोते हुए भी है ना, आप उसी चीज के बारे में सोच रहे हो। जस्ट थिंक ऑफ समथिंग जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, आप देखोगे इवन रात को ड्रीम्स भी उससे रिलेटेड आते होंगे, आप चलते फिरते उसके बारे में सोच रहे होते हैं, एंड दैट्स हाउ यू जनरेट पोटेंशियल विद इन योरसेल्फ। एंड वही पोटेंशियल एक्शन लाता है। That simply means one thing, result genuinely is a byproduct of one thing, that is your belief। यानी हैप्पीनेस भी है ना, जो रिजल्ट हमें अगर हैप्पीनेस चाहिए तो उसका एक ही उपाय है, आपके अंदर बिलीफ होनी चाहिए कि मैं खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। द प्रॉब्लम इज most people don't even believe that they can stay happy in their life, and that's why they are not happy in their life। I've seen
that कई लोगों का मानना है अगर पैसा हो तो हम खुश रहेंगे. आई अंडरस्टैंड बेसिक नेसेसिटीज के लिए पैसे की जरूरत है, 100% जरूरत है. कई लोग बोलते हैं रिलेशनशिप हो तो हम खुश रह सकते हैं. कई लोग बोलते हैं सोशल स्टेटस हो, नेम एंड फेम हो तो हम खुश रहेंगे. Believe me, I've seen so many people and as a coach, मेरे पास हजारों लोगों से मैं मिला हूँ आज तक, and हर बार I have noticed one thing. किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ नहीं होता है. The point is, होने के बावजूद भी वो दुखी होता है. Sorry. And the core reason is they don't believe that they can stay happy. Number one. Number two, वो अपने गोल को भूल गए हैं. उसके जगह वो जो मीन टू अचीव गोल है ना, उसके पीछे पड़ गए. फॉर एग्जाम्पल, पैसे की अगर बात करते हैं, is there any end to money? I was recently watching a series, City of Dreams का season 2, and उसमें एक पॉलिटिशियन ने एक बिजनेसमैन से पूछा था, हाउ मच मनी इज एनफ फॉर यू. Then he made one statement, money is never enough. Same goes for name, same goes for fame. आपको जितना भी मिल जाए ना वो कम है, आप उसको और फर्दर लगाना जाओ. The point is, I'm not saying कि आपको ambitious नहीं होना चाहिए. Yes, you should be ambitious. The point is, मुझे मेरे एक दोस्त का एक स्टेटमेंट याद आता है. उनका स्टेटमेंट ये था, हमारी प्यास जो है ना समुद्र जैसी विशाल होनी चाहिए, लेकिन तृप्ति एक बूंद मिलने से हो जानी चाहिए. That means your vision, your goal should be as big as an ocean. Fine. Whereas you should get satisfied with even one drop of water. That simply means one thing, कि planning, dreams, सब कुछ होने चाहिए. रिजल्ट आने के बाद में उस रिजल्ट को embrace करना, उसको एक्सेप्ट करना, एंड देन उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना. दैट्स द की टू हैप्पीनेस. सो दिस इज बेसिक्स ऑफ हैप्पीनेस. नाउ कमिंग बैक टू द फैक्ट दैट एनएलपी कैसे हैप्पीनेस के लिए काम कर सकता है, जो हमने टॉपिक रखा है एनएलपी फॉर हैप्पीनेस. लेट मी टेल यू वन थिंग. एनएलपी जो वर्ड है ना, न्यूरो लिंग्विस्टिक एंड प्रोग्रामिंग, इट सिंपली मींस वन थिंग. आपके सोचने का तरीका, आपके प्रोसेसिंग का जो तरीका है ना, वो बदलता है, और rather I'll use the correct word, align करता है NLP. That helps you to understand कि आप ज्यादा कैसे खुश रह सकते हैं. And to be very frank, the reality is NLP का तो core objective ही एक ही चीज है, that is how humans can be more happy, more satisfied with their own thought processes, by achieving more, by accepting more, by loving more, by embracing more. So that's the beauty about NLP. So with that, I would now request that क्योंकि हम एक बहुत ही brief talk यहाँ रखना चाह रहे थे, so मैंने briefly एक छोटा सा example लिया है NLP के बारे में. Let me tell you, NLP is an endless topic. I am practicing NLP for last now 9 to 10 years, and let me tell you, every day आज भी मुझे कुछ नया मिलता है उसमें से, because every time you study the same thing, you get to learn a new thing, because it's about psychology, your own psychology, people's psychology, how you can influence others, लोगों को positively कैसे influence कर सकते हैं आप, लोगों के साथ positive relationship कैसे build up कर सकते हैं आप, लोगों को अपनी आइडियाज कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, बिफोर वी मूव ऑन, इफ आई गेट अ परमिशन फ्रॉम कविता जी एंड अदिति जी, आई विल जस्ट शेयर वन स्मॉल पॉइंट अगेन. सो कविता जी, अदिति जी, कैन वी डू? या प्लीज गो अहेड. ओके, सो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप जो भी आइडिया सजेशन लोगों को देना, वो आइडिया या सजेशन लोग आपकी एक्सेप्ट कर ले? हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट? टाइप आई इन द चैट बॉक्स.
Okay, I've just got 1, 2, 3. Thank you, Minaji. Thank you, Kusumji. Thank you, Kumudji. Sorry. Thank you, Madhuji. Thank you. Thank you very much. So we will talk about a very small secret to getting your ideas accepted by others. Now, just imagine, okay. Thank you, Manjula ji. So the point over here is, आपने से नोटिस किया है कभी कि अभी थोड़ी देर पहले हमने मोबाइल फोन की बात की थी. मोबाइल फोन इंटेक्स करके एक कंपनी है, वो भी बनाती है, ठीक है ना. बहुत छोटी मोटी और भी ब्रांड्स है, वो भी बनाती है. यानी 10,000, 5,000, 8,000 के भी मोबाइल फोन आते हैं. Okay, am I audible, everyone? I'm getting a message that sound is slow.